अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो आई हैव नोटिस जितने भी सारे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स के पास रहे हैं अच्छे अच्छे, जिनकी एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल वैल्यू है, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। दिस वाज द पीस आई वाज सीकिंग फॉर, बट नाउ आई एम फाइनली एट द बीच एंड आई एम लविंग इट। So it is 8 o'clock in the morning in Mumbai and guess what? It is still raining. And अभी यहाँ से we have to go a long way. Why? Because यहाँ से पहले हमें जाना है चर्च गेट। चर्च गेट के लिए we will go on a train. And then चर्च गेट के बाद we will go on a sharing taxi to Gateway of India. And फिर Gateway of India से हम ferry लेंगे to अलीबाग. And the main part is we are not even going to अलीबाग। जो हमारा मेन रिजॉर्ट है, the name of the resort is the Coastal Heritage, that is located 40 minutes away from 40 minutes, I guess 35 to 30 minutes away from Alibag. So yes, just look here. Also all the information will be provided in this video, how to go to Alibag from Mumbai and what to do in Alibag. So keep watching. और ये जाम देखो मुंबई का। It is 8:30 in the morning. Having local vada pav on the street. This is seriously so good. Better than Delhi. ट्रेन में लगे हुए हैं, वेटिंग फॉर द ट्रेन। सीट मिल गई है। अभी भी बारिश आ रही है। वी हैव रीच्ड चर्च गेट स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। रीच्ड चर्च गेट स्टेशन। अब हम यहाँ से जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूँगी। तो गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको ऑटोज़ वगैरह नहीं मिलेंगी, ओनली शेयरिंग टैक्सीज मिलेंगी, आपको प्राइवेट टैक्सीज मिलेंगी। आई होप मेरी वॉइस आ रही है। तो आप यहाँ से शेयरिंग टैक्सीज ले सकते हो और जो भी फेयर होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का गेट था और यहाँ से आपको सीधा आना है। सीधे आके आपको लेफ्ट लेना, किसी भी पूछ लेना, दे विल टेल यू कि आपको शेयरिंग टैक्सीज एंड बसेस कहाँ से मिलेगी। सो आई एम एट गेटवे ऑफ इंडिया राइट नाउ। मेरे पीछे है ताज होटल। सो आज मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। फाइनली आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग बट माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग नाउ। सो आई एम ब्लॉगिंग इन माई फ्रेंड्स फ़ोन। एंड यहाँ पे आके पता चला कि फेरी भी अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। सो आई डोंट नो हाउ वी विल गो टू अलीबाग नाउ। दिस इज़ ताज होटल, दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया एंड वहाँ से फेरीज वगैरह चलती हैं। एंड बारिश पे बारिश हो रही है। सो हम आ गए हैं कोस्टल हेरिटेज।
This is me and this is the washroom area. Washroom is very basic, but the outside pool is amazing. So अभी थोड़ी देर में we will go outside the cottage and I will show you everything which is here in Coastal Heritage. देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है over here. All the basic amenities that they have provided. 2 glasses, basic things, tea, coffee, electric kettle, TV, and yeah, basically everything is here. So जितनी भी सारी details हैं about the property, like price and location and everything, that you will get in the description box. But this is not the end of the video. अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि property में और क्या क्या है. So keep watching till the end. And not only this, I will also show you what's there to do in Rave Danda, which is the place जहाँ पे ये वाला resort है. So keep watching the video. So this is what we have ordered. अभी और आ रहा है. And here we have the dinner. This is paneer butter masala. This is handi chicken, rotis, salad, and dinner. This is the next morning, and I'm right in front of my private pool. Life's good like this. Cat is also here. So it is like really good over here. आसपास कुछ भी नहीं है. There is only greenery. And रात में when I was here, I was listening the voice of the beetles and insects. It was joining me more to the nature. And where I'm sitting right now, जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ, उसके एकदम opposite side पे, pool के उस side पे, there is the beach. And the best part about this hotel is that it is in Rave Danda, and यहीं पर there are 2 main attractions जो भी अलीबाग घूमने आते हैं, they come here and see that. First is Rave Danda Fort and the second is Rave Danda Beach. And Rave Danda Beach हमारे एकदम back side पे ही है. Rave Danda Fort भी हमारे back side पे ही है almost. So if you are coming here, the best part will be renting a scooty. What we did was we did a, as I already told you कि यहाँ पे जो Gateway of India है वहाँ से ferries चलती हैं. But unfortunately because of the rain, ferries नहीं चल रही थी. अगर हम फेरी से आते तो इट मस्ट हैव बिन 250 रुपीज़ पर पर्सन एंड फेरी हमें यहाँ तक छोड़ देती. कहाँ तक? मंडवा तक. बट एज द फेरीज वर नॉट वर्किंग, वी ट्राइड सर्चिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव्स एंड वी गॉट टू नो दैट बाय रोड इट्स 3 hours distance. It is 2.5 hour distance basically from Gateway of India to Alibag bus stand. So then we got to know about sharing taxis जो कि वहाँ से यहाँ तक हमें sharing में छोड़ देती हैं. So basically we are 4 people and per person से 800 rupees लिए, 800 to 1000 लिए, and they will drop you over here. And मच्छर देखो, there are too many mosquitoes here. So after the cab will drop you at Alibag bus stand. जो वो वाला बस स्टैंड है that is in the main market. तो आप वहाँ से easily स्कूटी रेंट कर सकते हो in 500 to 600 rupees per day, even if it is weekday. So that was sick. So basically वो जो स्कूटी रेंट वाला है, he was saying that he will give us the scooty in 600 per scooty and we rented 2 scooties. पर हमने डिस्काउंट करके उसको 500 में करवा लिया. एंड उसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल भी था, तो हम डायरेक्टली यहाँ तक आ गए. सो फ्रॉम मेन अलीबाग टू हेयर द डिस्टेंस इज़ अराउंड 35 to 40 minutes.
एंड यहाँ पे भी मेन अट्रैक्शंस है, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टे. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द ब्रेकफास्ट. आई विल शो यू ऑल द मेन्यू. We have watermelon juice, banana, upma, bread omelette is coming, and aloo ka parantha is coming. So this is the room. ये ओपन बाथटब वाला रूम है. ओके. सो हेयर इज़ द ओपन बाथटब. ये भी इनकी कैटेगरी है रूम की. नाइस. और इस वाले में पूल नहीं है ना? इसमें पूल नहीं है. दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ अ लिटिल वॉकिंग एरिया दैट दे हैव. मतलब एक तो ये वाली कैटेगरी है, एक विला है. आपके दो हैं? दो, ओनली टू. इसके अलावा और कोई कैटेगरीज नहीं है ना? और दो कैटेगरीज में रूम है. अच्छा है. प्रीमियम में और बड़ा सूट है. अच्छा अच्छा. सो इनके ड्यूलक्स रूम्स हैं और ये बड़े वाले विलास टाइप है. तो एक बार ड्यूलक्स रूम देख लेते हैं कैसे हैं. सो दिस इज देयर ड्यूलक्स रूम्स. This is the bed, all the things, and this is the washroom, nice and clean. Little washroom that they have. This is me. और ये वाले कौन से हैं? प्रीमियम विला. अच्छा. So this is their premium villa. This is the room. This is very nice. This is the washroom. Washroom is normal. एंड यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता नहीं है. So I want to show you this कि ये वाला पूल है और पूल के लेफ्ट साइड में ही they have this beautiful स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा. यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑल द ग्रीनरी इज कनेक्टिंग अस टू द नेचर. नहीं कोई बात नहीं. अब बताइए मैप. ये कौन सा है? स्वीट रूम है. दिस इज़ द स्वीट रूम. यहाँ पे काउचेस हैं एंड वेरी नाइस. इट इज़ वेरी स्पेशियस फॉर अ फैमिली. दिस इज़ द वॉशरूम. And this is the bedroom. We have one double bed. We have two double beds here. And wow, just look at the balcony. Very nice. And we have a little kitty over here. इधर ही रहती है ऐसे भैया बोल रहे हैं. Okay, so इस वाला जी जो फैमिली स्वीट है इसका प्राइस है अराउंड 10,000. एंड जो मेरे वाला विला है दैट इज़ फॉर 8 to 9,000. Depends upon the season. So now I am heading to Rwanda Fort and Rwanda. Now I'm heading to Ravdunda Fort and Ravdunda Beach, and I've again changed my outfit. These bottoms are from Beacon Hill. The video you will see on my Instagram, so don't forget to follow me on Instagram. Here is the ID. हम निकल गए हैं. Nails टूट गए हैं. आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये है रेवडंडा फोर्ट. About this fort, I want to give you some information that this fort was built by a Portuguese captain, and after that, this fort was taken by Shivaji Maharaj. I'm telling you that this fort was built by a Portuguese captain जिसका नेम ये रहा, and after that was captured by Shivaji Maharaj, and after that it was captured by the Britishers. So that is why इसकी कंडीशन ऐसी है. Does not maintain. यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ इसके बारे में कुछ हिस्टोरिक, बट ऑल द डिटेल्स अभी आपको मिल जाएंगी.
ऐसा दिख रहा है। So this is how it is looking from inside. ये देखो जरा, अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, एज यू कैन सी। सो आई हैव नोटिस जितने भी सारे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स के पास रहे हैं, अच्छे अच्छे, जिनकी एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल वैल्यू है, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। व्हाट टू से, जस्ट लुक हियर। अभी ये थोड़ा सा खंडर टाइप लग रहा है, बट इट वाज अ फोर्ट वंस। फोर्ट, और फोर्ट के इधर की साइड का व्यू, वाओ। देवडंडा फोर्ट के ऑपोजिट साइड से, उधर की साइड से आप जा सकते हो बीच पे। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ से बीच 1.5 किलोमीटर आगे है अगर आप मैप देखोगे तो, पर यहाँ से भी रास्ता वो रही बिल्डिंग, ये भैया जो जा रहे हैं इन्होंने दरवाज़ा खोला, यहाँ से आप बीच पे भी जा सकते हो। सो यहाँ की जो पार्किंग है वो है 20 रुपीज़, जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया और जिनका दिखाया, जिन्होंने ये वाला गेट खोला है, वो आपको इसी रास्ते से बीच पे भी जाने देंगे, जबकि यहाँ से बीच का रास्ता 1.5 किलोमीटर आगे है। ऐसा रास्ता है जो कि बीच की तरफ जाता है। से आए हैं हम और ये है सामने बीच। There is literally no one on the beach except for us, me and my friends. At last, this was the peace I was seeking for from so long. I have actually been a beach girl since forever, पर मुझे mountains पे जाना पड़ जाता था। But now I'm finally at the beach and I'm loving it. यहाँ पे थोड़ा सा clean नहीं है, as you can see. But this is a very different beach. एकदम आगे तक पानी आया हुआ है। अभी टाइड्स वहीं तक ही हैं, बट स्टिल ऑल दिस इज वेट। वहाँ पे पेयर डॉग्स। ये बीच जाने वाले रास्ते पे ही बहुत सारे कैंप्स भी हैं, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। नाउ वी आर एट दिस प्लेस, जो कि आपको रास्ते में मिलेगा। जब आप काशिद बीच जा रहे होगे तो आपको रास्ते में वाला प्लेस मिलेगा, जहाँ पे पीछे बीच है, पत्थर हैं, एंड यहाँ पे हम लोग पियेंगे नारियल पानी। बहुत अच्छे से अंकल आंटी हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे आ सकते हो, अपनी खुद की फ़िश लेके आ सकते हो। ये लोग आपको फ्राई करके भी दे देंगे, और इसके अलावा आपको ये सब भी मिलता है यहाँ पे। उस रास्ते से आते हुए आपको ये बड़ी सारी शॉप्स दिखाई देंगी, इसके पीछे ही बीच है, तो आपको यहीं से एंट्री करनी है। गूगल मैप जो है वो आगे की लोकेशन दिखा रहा है, पर आपको आगे नहीं जाना। जहाँ पे आपको शॉप्स मिले आपको वहीं से एंट्री कर लेनी है काशिद बीच की। तो ये है मेरे पीछे काशिद बीच, एज यू कैन सी। ये वाली बीच भी लेस क्राउडेड है, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बीच विच इज़ लेस क्राउडेड यू कैन डेफिनेटली कम। यहाँ पे कुछ ये भी कर सकते हो, ATV राइड्स, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है ना आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका पर पर्सन का 200 है। कितना है भैया चार्ज? पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज़ है इसका। और यहाँ पे आप फिर कुछ खा पी भी सकते हो। देयर आर शैक्स, आराम से लेटो, खाओ पियो, बैठो,
फ्रेंड्स के साथ मज़े करो। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू कम हियर, मतलब डोंट मिस दिस बीच आउट। I'm back at the resort. Lunch time. We have cheese balls, chapatis, and this is pomfret masala with salad. And the view is this. I have again changed my clothes after lunch, and now we are going to Alibag tour. So the plan is today we will explore Alibag beach and all the tourist attraction या फिर जो भी एक दो beaches वहाँ पे होगी वो, and then tomorrow morning we will explore the Alibag fort because जो fort है वो 5 बजे बंद हो जाता है। So first place जब आप होटल से आगे जाएंगे अलीबाग की साइड तो आपको मंदिर दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप ज़रूर आना। दिस इज़ अ फेमस अट्रैक्शन फ्रॉम नाउ ऑन। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द अलीबाग बीच। दिस इज़ अलीबाग बीच। दिस इज़ द लोकल बीच है जहाँ पे हर कोई आता है। दिस इज़ वन ऑफ द proudest beaches in Alibag after the Mandava beach, but it has a nice vibe. You can sit here and relax. बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, ATV बोटिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये अलीबाग बीच के साइड में आपको बहुत सारा लोकल फूड मिल जाएगा। और अब मैं खाने वाली हूँ यहाँ के गोलगप्पे। लेट्स सी कि कैसे हैं। लगी हुई है गोलगप्पे खाने की। स्पॉट आई एम गोइंग टू इज़ द कीहिम बीच विच इज़ नोन फॉर इट्स काम वाइब्स, जो कि अलीबाग बीच से ओनली 30 to 35 मिनट्स दूर है बेसिकली। आप टैंक देख रहे हो, ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर में यूज़ हुआ था और ये असली टैंक है जो यहाँ पे है। आप यहाँ अलीबाग बीच बैठ के नज़ारे ले सकते हैं और यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो। Checking out now. Bye bye room. Let's go. So I am back at Alibag beach and उधर मेरे पीछे की साइड अलीबाग बीच है एंड उसके ऑपोजिट साइड एज यू कैन सी यहाँ पे लॉकर सर्विसेज एंड वॉशरूम वगैरह भी हैं। यहाँ पे लॉकर सर्विसेज, यहाँ पे वॉशरूम भी है एंड जो भी इधर छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। और ये अलीबाग जो बीच है उसके एकदम अपोजिट साइड को ही है, तो यहाँ पे 100 रुपये है लॉकर चार्ज। आप यहाँ पे अपना सामान भी रखवा सकते हो। हाउ अलीबाग बीच इज़ लुकिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। सो नाउ आज एज आई शोन यू इन द वीडियो, जो फ्लो है वो काफ़ी पीछे जा चुका है, तो इट इज़ गुड टू वॉक टू द फोर्ट नाउ। अब आप इजीली वॉक करके जा सकते हो जब फ्लो नीचे हो। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वॉक करके जा रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे स्पीड बोट्स हैं वो 200 से 250 रुपीज़ पर पर्सन लेती है एंड वो आपको डायरेक्टली फोर्ट पर छोड़ती हैं। ये जो फोर्ट है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। रास्ता आता है यहाँ पे, और यहाँ से देखो यहाँ पे भी आपको समुंदर दिखाई देगा। दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द फोर्ट। जो बोट्स वगैरह आती होंगी वो शायद यहाँ पे छोड़ती होंगी, पर हम आए हैं पीछे से, जो कि मैंने आपको रास्ता दिखाया था वॉकिंग वाला। ये आप जूम करके पढ़ सकते हैं। यू कैन सी इस किले के अंदर अभी भी लोग रहते हैं। यहाँ से एंट्री थी किले की। यहाँ आप अगर लेफ़्ट साइड में मुड़ के आओगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा, तो इस व्यू को मिस मत करना। ये तोप वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। बोला था जो भी फोर्ट वगैरह ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एज यू कैन सी कि इस फोर्ट की कंडीशन भी अभी कुछ खास नहीं लग रही है। ये है गणेश मंदिर। यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है।
सो हमारे दिल्ली में जो गोलगप्पे होते हैं उसके अंदर आलू भरे होते हैं, आलू भरते हैं, सॉरी आलू और क्या नाम है, छोले भरते हैं सूखे वाले। पर यहाँ पे जो छोले होते हैं वो होते हैं तरी वाले। तो तरी वाले छोले के ऊपर से ये लोग डालते हैं पानी। इसने उतार दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप टिकट वगैरह लेकर डायरेक्टली जा सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया तक। और पर पैसेंजर जो टिकट प्राइस है दैट इज़ 285 रुपीज़। फेरी की टिकट है वो आपको फेरी के अंदर ही मिल जाती है, आपको बाहर कोई काउंटर वगैरह नहीं दिखाई देगा। सो आई एम बैक एट गेटवे ऑफ इंडिया नाउ एंड जहाँ से फेरीज चलती हैं वहीं पे ही फेरीज आके ड्रॉप करती हैं। मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।